चलिए, ऑनलाइन विजिबल, ऑडिबल? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. चलिए, so let us start with the perimeters and areas of four-sided figure, right? So let's take a quadrilateral. So if you take any quadrilateral, let's say a quadrilateral is any four-sided figure. Doesn't look nice. So let's say I'll take a, ये rhombus बन गया अपने आप ही, ये ठीक है. Okay, so let us say this is a quadrilateral. It has four sides. So these are the two diagonals of this quadrilateral, let's say. So let's say this is A, B, C, D. So the perimeter obviously is this length plus this length plus this length plus this length. So the perimeter is perimeter is nothing but A plus B plus C plus D, should not be a problem. Now the area can be taken as in two ways. One of the ways is, let us assume DB to be a diagonal. So we are taking, let us say, DB to be this diagonal. So it will divide it into two triangles, right? So this will divide into two triangles. And let's say we drop a altitude from this vertex to this line. This is H1. And we drop this here. And this is H2. Right. So area of this quadrilateral will be area of first triangle, that is half into BD into H1 plus half into BD into H2. That means I can take half BD, I can take common H1 plus H2. That will give me the area of triangle, right? This is one of the ways of doing. Now let us say we are assuming the second diagonal. Let's say we are talking of this particular diagonal, and let's say this is green. Now this diagonal will also divide our line into two triangles, right? This is a straight line like this. So we can drop an altitude from here to this. Let us say this is H3, and we can drop an altitude from this vertex to here. Let us say this is H4. In this case also, we can find out the area of the triangle as half into, in this case, my diagonal would be AC into H3 plus half into AC3 into H4. So the area will be half into AC into H3 plus H4. So one of the ways of finding out the area of a quadrilateral is by dividing the quadrilateral into two triangles and then finding out the projection of the two triangles and finding out both the areas and adding it. Now, the problem that could arise is that you may not be able to find out this, the altitudes. In such a scenario, what do we end up doing it? Let's say in such a scenario, okay, let's say right, let's say this is the let's say we are having two diagonals. This is one of the diagonals, let's say. Let's say we have let us assume this is diagonal D1 and this is diagonal D2. And these two are making some angle theta here. So this entire length is D1, the entire length is this 2. Then the area of this quadrilateral can be half D1, D2 sine theta. Now the question is, which angle is theta? Now, if this is theta, then this will certainly be theta because vertically opposite angles are equal now. But we also know this is a straight line, so this is theta. So this angle is basically 180 minus theta. So if this is 180 minus theta, this angle is also 180 minus theta. Now we also know that sine of 180 minus theta is same as sine of
theta, and therefore if you know any of the vertically opposite angles, then we will be able to get our answer in this particular fashion. Sin d1 a is equal to half d1 d2 sin theta. Now we have already studied that all the symmetric figures, that means a square is a quadrilateral, a rectangle is a quadrilateral, a rhombus is a quadrilateral. This formula half d1 d2 sin theta is applicable for all quadrilaterals. You can apply this formula for square, rectangle, rhombus, parallelogram, trapezium, etc. Right. So this is an important result. No problems. The next idea that we have is even before that, let's just take a trapezium. So let us say, let's say this is a trapezium. This is A, B, C, D. So these two are parallel sides. Let's say the altitude is this of a trapezium, H. So in this case, the area is given as half into sum of parallel sides into distance between them. So distance between what? Distance between the parallel lines. So in this case, let us say this is A, this is B, this is C, this is D. I hope you understand perimeter is nothing but A plus B plus C plus D. So the area is half into A plus C multiplied by H. This is given as the area of a trapezium. Right. I think I've already told you about this line. If you draw a line, you remember this? Did I tell you or not? Let us say this is PQ and we have to find out the length of PQ, which is dividing in the ratio of m:1. Okay. So that is it. We don't need here. So that is nothing but area of and perimeter of a trapezium. Then let's look at a parallelogram, right? So let us say this is A, B, C, D. We know that in a parallelogram, what happens? Opposite sides are equal and parallel. So this is A, this is B, this is A, this is B. Obviously, the perimeter turns out to be 2 times A plus B. That is the perimeter. वो तो होगा ना, इसको डल करने का कोई सिस्टम. बट फिर भी ब्राइटनेस कम कर देंगे तो कुछ बन जाएगा. पीछे जा, एक बार पीछे चली जा. बैठ तो सही, अभी तो खड़ी है. अब ठीक है ना? पैसे बचेंगे, लगेंगे मेरे. ऑनलाइन का पता तो नहीं, दिखाएगा फोटो इतनी बड़ी, यहाँ इतना. अच्छा, चलो देखते हैं, आज करेंगे इसका कुछ इंतजाम. शाम को देखता हूँ, क्लास के बाद देखता हूँ उसका क्या सोल्यूशन है. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेज. ऑफ कोर्स हाफ d1 d2 sin थीटा तो इसमें भी लगेगा ही लगेगा. तो एक ये तो हमारा पेरीमीटर हो गया. इसका एरिया होता है, मान लेते हैं मैंने इसमें एल्टीट्यूड बना दिया ये. Because can I say parallelogram is also a trapezium? In that sense, I may want to say half into sum of parallel sides into my distance between them, this h. So this becomes nothing but, you know, half into 2a into h. a से a कटेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ah. तो एरिया कितना बन जाएगा? a into h. So a is the base, h is, mind you, corresponding height. If you want to take b as a base, then I have to take the distance between b. ये ध्यान रखना है. ठीक है. जो हमने parallel lines लिए हैं उसी का हमें उसी के बीच का गैप लेना है हमें. Sometimes h may not be given to us, but the theta, that means adjacent angle दे रखा होता है. ठीक है. उस केस में फॉर्मूला तो a into h है. तो अब मुझे h निकालना है तो h की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं. कैसे? If you know it is a right angle triangle, we can use trigonometry as in sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. This would mean h is equal to b sin theta. Area is a into h. So a is equal to a. h की जगह हम लिख सकते हैं b sin theta. So this also itself is a formula. So area can be taken as
AB sin theta, or area can be taken as A into H. So this is another way of finding out area of a parallelogram, right? ठीक है? Okay. So these are perimeters and area of a parallelogram. Then we come down to so let us say this is a rhombus. So this is A, this is A, this is A, this is A. So when we say rhombus, the perimeter is 4 times area. The perimeter is 4 times area. Now we know the diagonals will differ 4 times the side. I'm sorry. Okay. This. And then let us say this is my second diagonal. Now the property of rhombus is that diagonals will intersect each other at 90 degree. That is what we know. Let us say iski length पूरी length d1 है और इसकी पूरी length d2 है. So once again the area can be given as half of d1 d2 sine of theta. The theta here is 90 degree and we know sin 90 की value 1 होती है, इसलिए you will find the formula as half d1 d2. That is the formula of rhombus, right? हाँ बेटा क्या पूछ रही है बता? sin 90, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो sin 90 हो जाएगा और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इसलिए वो d1 d2 खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये रोम्बस है. फिर हमारे पास आता है रेक्टेंगल. In rectangle, let us say this is length, this is breadth. Obviously, you understand that perimeter is 2 times L plus B. Area is nothing but L into B. Now, in this case, let us say this is L and B, and we draw or we have a rectangle with outer path. Let us say, you know, the length of this is L and the length of this is B, and the thickness of a pavement, let us say there's a park of length LB and there's a pavement which you have drawn of length A units. तो इसकी thickness कितनी है? सारी जगह A units है. Now we are interested to find out the area of this pavement. So how do you find out the area of this particular pavement? So one way of doing it is finding out outer area minus inner area. Now we know this length from here to here happens to be L. This is additional A, this is additional A. So the outer length becomes L plus 2A. By the same logic, if you look, this is A, this portion is A, this portion is B. So the total length happens to be B plus 2A. So if you are looking at the area of this yellow portion, it is outer area minus inner area. So outer area is outer length into outer breadth minus the inner area, which is L into B. So all we are interested in solving this, which is nothing but, let's say, LB plus 2AL plus 2AB plus 4A square minus LB. So LB से LB cancel हो जाएगा. I will have 2A L plus B. This will give me the area of outer path. ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ आउटर पाथ. उसी तरीके से मान लेते हैं हमने इसके अंदर एक एरिया बना दिया, लेट अस से दिस. ठीक है, अब जो इसकी विड्थ है, ये इसके अंदर जो एरिया है वो ये है. समझ में आ रहा है? ग्रीन वाला एरिया. ठीक, और जो इसकी थिकनेस है वंस अगेन वो कितनी है? ए है मान लेते हैं. तो इसकी जो थिकनेस है ये भी ए मान लेते हैं. तो अब मुझे अगर ग्रीन एरिया निकालना है, तो अभी हमने जो इसकी एरिया वाला निकाला, ये येलो एरिया निकाला. अगर इनर एरिया निकालना है, आपको पता है यहां से यहां पूरी लेंथ कितनी थी? एल थी, और ये लेंथ कितनी माइनस हो गई? ए. तो ये क्या बनेगा? ये वाला बनेगा बी माइनस 2A. उसी लॉजिक से ये बनेगा L माइनस 2A. क्या 4A स्क्वायर कॉमन? अभी कहाँ कॉमन है? नीचे वाली इक्वेशन. अच्छा, ये कह रहा है, ये कहाँ गया क्या? ठीक है, अभी मान लो मैं ग्रीन वाला निकालना है, तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करना पड़ेगा. आउटर एरिया है L इंटू बी माइनस इनर एरिया बनेगा L माइनस 2A इंटू
बी माइनस 2a। अब हमें ये सॉल्व करना है तो ये बनेगा एल बी माइनस ऑफ एल बी minus 2al minus 2ab plus 4a square, right? So this will become lb minus of lb plus 2al plus 2ab minus 4a square. So lb gets cancelled. So what is remaining is 2a common, l plus b minus 2a. So this is the area of inner path. ठीक है, तो ये आउटर ऑफ एरिया पाथ, आउटर ऑफ मतलब एरिया ऑफ आउटर पाथ हो गया एलबी क्या, और दूसरा वाला ग्रीन वाला एरिया ऑफ इनर पाथ हो गया। ठीक है, उसी तरीके से कई बार क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि हमारे पास ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल है इस तरीके से, ठीक है, और हमने एक रेक्टेंगल ऐसा बना लिया ए थिकनेस का यहाँ पे, और ऐसा ही एक रेक्टेंगल बना लिया ए थिकनेस का यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी विड्थ सेम विड्थ मान लेते हैं। अब हमें इसका एरिया निकालना है इनर वाले का, और हमें आउटर इसका एरिया निकालना है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी, हाँ, अब क्या हो गया कि ये बाहर वाली लेंथ ये b है और ये पूरी लेंथ a है, सॉरी ये लेंथ l है और ये वाली विड्थ a है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रीन कलर वाला अपने आप में एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ a है और लंबाई l है, तो इस ग्रीन वाले की लेंथ कितनी बन जाएगी? LA। उसी तरीके से अगर हम येलो वाले की बात करें तो चौड़ाई a है और ये जो हाइट है वो कितनी है? b, तो इसका एरिया बन जाएगा BA। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमने ग्रीन वाला लिया था तो स्क्वायर को अगर हम देखें तो कवर हो गया था, फिर अब जब हमने येलो वाला लिया तो ये वापस कवर हो गया। तो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ए चारों साइड का, और ये 90 डिग्री है। तो ये जो दो बार हो गया इसका एरिया ए स्क्वायर है, तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि व्हेन यू ऐड दिस एंड दिस इज एडेड ट्वाइस, सो यू सबट्रैक्ट वंस, यू कैन टेक ए कॉमन, you have a plus b minus a, so this is known as area of crisscross path. No problems. अगर ये कॉर्नर में होता है ये येलो वाली लाइन तो पक्का तब भी यही होता है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो कोना में कट जाता है टुकड़ा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल यहां होता तो क्या कोई फर्क पड़ जाता इस क्वेश्चन के आंसर पे? कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? सब कुछ सेम रहता है, बस ये कॉर्नर यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ पाथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो काम हम इसके लिए कर रहे हैं हम वही काम एग्जैक्टली स्क्वायर के लिए भी वैलिड कर सकते हैं। तो ये मान लो हमारे पास स्क्वायर है, तो हमें पता है कि ये साइड ए है, तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा वो बनेगा मेरा 4a, एरिया जो बनेगा वो ए स्क्वायर बनेगा, राइट। अब वंस अगेन इसका जो डायगोनल होता है वो बराबर होता है, मान लेते हैं ये इसका डायगोनल है D1, ठीक है। तो जो दूसरा वाला डायगोनल D, मान लो ये भी D है, दोनों D है, तो दोनों डायगोनल D है, तो एरिया बनेगा हाफ D स्क्वायर साइन थीटा, which is nothing but area can be taken as half of D square। ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, हमें पता है D की वैल्यू √2a है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D/√2। तो एरिया मेरा है, एरिया जो होता है वो a स्क्वायर होता है, तो D/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो वापस हाफ D स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, ये दोनों मेरे फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ पाथ का। जो काम हमने रेक्टेंगल में किया है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, वही काम हम स्क्वायर में भी कर सकते हैं, वही काम हम क्रिस क्रॉस में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूले है ये 4 साइडेड फिगर की एरियाज एंड पेरीमीटर है। क्या मैंने आपको हेक्सागन या पॉलीगन का कुछ समझाया एरिया? ओके, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास 4 साइडेड फिगर स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिनके हमने पेरीमीटर्स और एरियाज निकाले हैं। अब हम निकालते हैं हेक्सागन या पेंटागन या ऑक्टागन, कोई भी रेगुलर फिगर ले लेते हैं और हम उसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं, मैं एक बार इजी फिगर इसलिए ले रहा हूं हेक्सागन, ताकि मैं बाद में आपको कुछ प्रूव करके दिखा सकूं उसके अंदर। ये हमारे पास हेक्सागन है, तो हम इसकी रेगुलर फिगर ले रहे हैं। तो मान लेते हैं ये मेरी साइड्स ए हैं, ये मेरी सारी साइड्स ए हैं, तो ऑब्वियसली इसका पेरीमीटर बनेगा 6a, तो इसका पेरीमीटर बनेगा 6 टाइम्स a, राइट। नाउ इन हेक्सागन और एनी पॉलीगन विद रेगुलर साइड,
you can always draw a circle which will circumscribe this figure and it will also inscribe this figure. क्या मतलब है इसका? मतलब मान लो मैंने ये फिगर, ये सर्कल बनाया, तो I can always draw a circle such that वो सर्कल इसको क्या कर सकता है, वो उसको सर्कमस्क्राइब करेगा हमेशा और इसको इंस्क्राइब भी करेगा। इस दोनों का क्या मतलब है? अगर वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब है अगर मैं सेंटर से इसकी दूरी मानूं, ये मेरा क्या बनना चाहिए? रेडियस बनना चाहिए। क्यों रेडियस बनेगा? बिकॉज वी नो इट इज अ सर्कल। सो इन सर्कल इट विल ऑलवेज समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये है इस सेंटर से ये सारी दूरी बराबर होगी। अगर ये बराबर होगी तो मैं एक बार नीचे बना लेता हूं ये वाली फिगर, ये रेडियस एंड ये रेडियस, ठीक। इसका मतलब है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब इट विल ऑलवेज फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल इट विल फॉर्म? जितनी भी साइड है उतनी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये पेंटागन होता तो 5 आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑक्टागन होता तो 8 आइसोसेलेस ट्रायंगल, डेकागन होता तो 10 आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, मल्टीप्लाइड बाय जितने भी ट्रायंगल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा पॉलीगन का एरिया तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? पेरीमीटर, ये पॉलीगन का एरिया कैसे निकलेगा? सारे ट्रायंगल्स का एरिया को जोड़ दूं, यही बात है। इसका मतलब है बेसिकली इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है मुझे। सो माय एजेंडा, माय टारगेट व्हिच इज लेफ्ट इज आई नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। लेट अस से दिस इज O and let me say this happens to be R and this also happens to be R. This is O. So vertex, समझ में आ रहा है? इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा मैग्नीफाई कर दिया। How do I find out area of this triangle? इस केस में तो इक्विलेटरल बनेगा। Now in this particular case, now what happens? We don't know this R. अगर हमें R पता होता तो हम हाफ R स्क्वायर साइन थीटा करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते। बट हमारी समस्या ये है कि हमें ये R के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। और जो हमें पता है वो ये पता है A. That means I am interested to find out area of the triangle using this A. And I can also find out this angle theta because आपको पता है कि टोटल एंगल जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। सो 360 डिग्री टोटल एंगल है। कितने ट्रायंगल बनेंगे? जितनी साइड्स होंगी उतने ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर 6 साइड है तो 6 ट्रायंगल बनेंगे, 5 साइड है तो 5 ट्रायंगल बनेंगे, n साइड्स हैं तो n ट्रायंगल बनेंगे। तो हर जितने ट्रायंगल बनेंगे उतने में ये एंगल स्प्लिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कितने में? 6 है तो मान लो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा? 120 डिग्री। अच्छा हाँ, 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये एंगल कितना बन जाएगा मेरा? 60 डिग्री। और अगर n होता तो ये बन जाता। यही बात है। अच्छा, अब अगर मैं ऊपर से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, क्या नहीं से अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो ये a/2 होता और ये भी a/2 होता। इक्विलेटरल में तो होगा ही होगा, आइसोसेलेस में भी होगा। इसका मतलब अगर मैं इस हाइट को निकाल दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब मैं आपको जनरलाइज कर रहा हूं, मैं 60 नहीं ले रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन। 60 जाएगा कैसे? चलो कोई नहीं, मान लो 60 नहीं लिया मैंने, ये टोटल एंगल ले लिया मैंने 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। समझ में आ रहा है? जो कि 60 है इस केस में, एग्जांपल यानी जनरल हम ले रहे हैं। 360 डिवाइडेड बाय n मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल 360 बाय n है, ये वाला जो पोर्शन है वो इसका आधा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय 2 विच इज 180 बाय n। समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 बाय n। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मैं सामने वाली साइड और h में रिलेशनशिप चाहता हूं, और वो किस फॉर्मूले से मिलेगा? tan से। tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऑपोजिट साइड क्या है यहाँ पे? a/2। एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे मेरी? h।
इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा कितना है मेरा यहाँ पे 180/n। ये समझ में आ रहा है सभी को? हमें क्या चाहिए, h चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 का मतलब 2/1 होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा। अब हमें इसको चाहिए, बनेगा a/2 tan ऑफ 180/n इज इक्वल टू h, चलेगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल टू a/2 cot ऑफ 1/tan कितना होता है, cot थीटा, याद है? 1/tangent थीटा इज गिवन एज कोटेंजेंट थीटा। h की वैल्यू आ गई। अब इस एरिया का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही बनेगा। ये बनेगा हाफ इंटू ए इंटू एच की वैल्यू बनेगी a/2 cot ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, यही बनना चाहिए। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल गिव यू a स्क्वायर अपॉन 4 cot ऑफ 180 डिवाइडेड बाय n। ये क्या है, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। बट हाउ मेनी फिगर्स, n साइडेड फिगर, n साइड जनरल ले रहे हैं ना, n ले रहे हैं, n साइडेड फिगर है तो पूरे पॉलीगन का कितना बन जाएगा, n से मल्टीप्लाई करना है। सो एरिया ऑफ n sided polygon is n into a square by 4 cot of 180 degree divided by n. That is the formula. So this is the formula for finding out area of any regular polygon. अब अगर मैं हेक्सागन की अगर मैं बात करूं और हेक्सागन के बारे में आपको बताना है, तो हेक्सागन में n की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है? तो अगर मैं एरिया ऑफ हेक्सागन जो हमने फिगर बनाई है हेक्सागन, तो ये बनेगा 6 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन 4 कॉट ऑफ 180 अपॉन 6। तो कॉट 180 अपॉन 6 बनेगा कॉट थीटा, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा √3। तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स √3/4 a स्क्वायर इज द एरिया, ठीक है? 6 टाइम्स √3/4 a स्क्वायर आ रहा है हेक्सागन का। अब अगर वापिस आ जाओ, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हेक्सागन के अंदर ये एंगल कितना बनेगा 360/6, तो एक एंगल कितना बनेगा 60। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 120, लेकिन दोनों बराबर है तो कितना बनेगा 66। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे 6। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे 6, तो ये एरिया ऑफ हेक्सागन बनेगा। ये देखो फॉर्मूले से भी वही आ रहा है। बट हेक्सागन तो इजी होता है, क्वेश्चन भी आए हैं हेक्सागन पे, it is easy also, but if it is not a hexagon then we are in trouble, then we will have to figure out this value, although some of the questions earlier have been asked on hexagon itself. So let me just ask you a couple of questions on hexagon and let's see how well do you. So what is the ratio of this area of triangle to the area of hexagon? Area of triangle to the area of remaining hexagon. Area of this triangle to area of rest of the hexagon. इस येलो इस टू ग्रीन का हेक्सागन एरिया चाहिए मेरे को।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? नहीं बता, सुना ही नहीं तूने, 3 बार तो ही बोल लिया मैंने। क्यों? कैसे करोगे? आप ध्यान से देखो, इसमें 6 ट्राइंगल बनाए, 6 हेक्सागन बनेंगे, 6 ट्राइंगल बनेंगे इक्विलेटरल। एक ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, और ये परपेंडिकुलर है, तो कितने में डिवाइड हो जाएगा ये? 12 हिस्से बनेंगे। 12 हिस्से बनेंगे तो ये एक हिस्सा है, बचा हुआ 11 हिस्से, आंसर हो गया 1:11। नहीं, ये एक ट्राइंगल है ना, ऐसे ये एक ट्राइंगल है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये वाला, तो ये 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, सारे आइडेंटिकल बनेंगे उत्तरे की। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो चलेगा। कहाँ गया वो? चलेगा, नो प्रॉब्लम्स, है ना। ऐसे 12 ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं, और उसमें से एक चाहिए, या तो दिस ट्राइंगल इज टू पूरा पूछ लेता तो 1:12, 1:, बचे हुआ का पूछ रहा है तो 1:11। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन. Let us say we are having a hexagon like this, and we take the midpoints and draw another hexagon like this. ठीक है? So what is the ratio of ठीक है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द आउटर हेक्सागन टू इनर हेक्सागन, या व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द आउटर हेक्सागन टू इनर हेक्सागन. तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसको सॉल्व करो. What is the ratio of the perimeter of the outer hexagon to inner hexagon? What is the ratio of the area of the outer hexagon to inner hexagon? Sin 120 is same as sin 60. Sin 60 होता है √3/2.
हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक लग रहा है? कोई नहीं, कौन लगा ले, बेटर है। तो सब लोग ले आओ एक एक गॉगल। हाँ कोई नहीं, चद्दर तो चलो ठीक है। हाँ नहीं नहीं, तो चलो। तो साइड का क्या रेशियो होगा? पिटाई करूंगा अब तेरी, अगर वो निकालना पड़ा तो। ये आंसर देने के बाद वो निकालना पड़ा तो गलत बात है। सोच बिना निकाले। इफ यू नो द रेशियो ऑफ एरिया, यू शुड नो द रेशियो ऑफ पेरीमीटर आल्सो। बता कैसे? ये 1:1 नहीं भाई, ये क्या है? 1:1 थोड़ी ना है। कौन है ओके? पता नहीं, जिस कल बताया था ना किसने, ओके कौन है? अच्छा कैसे किया? सर हमने वो जो मीट हो रहे हैं उस बड़े फिगर के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींच दिया वो आइसोसेलेस एंगल बन जाएगा। ना कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ वो आइसोसेलेस एंगल बनेगा सर, वो जो हमारी साइड को एंगल बाइसेक्टर देगा तो परपेंडिकुलर दे रहे हैं वो बाइसेक्टर हमने वो फिर वो सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के वो साइड निकाल दी, उससे छोटे बड़े एरिया समझ गया, ठीक है ओके। अब मैं बताता हूँ करना क्या है एक्चुअली में। कुछ नहीं करना है ये, रुको ये एक मिनट सुनो। ये ट्राइंगल बनेगा ना, प्रॉपर ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ना, क्योंकि हेक्सागन है जो मैंने पेंसिल से बनाया है फिगर। मान लेते हैं ये साइड ए है तो ये भी साइड ए बनेगा और ये भी साइड ए बनेगा। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये जो पॉइंट है ये एल्टीट्यूड बनेगा, ये ग्रीन वाला। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कितना होता है? √3/2a। आ रही बात समझ में? अब ये जो लाल रंग का हमारा हेक्सागन है, या इसका एल्टीट्यूड, ये जो रेड वाला हेक्सागन है, समझ में आ रहा है? अगर ये रेड वाला हेक्सागन की साइड बी है, मान लेते हैं साइड बी है, हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें निकालना है a/b, यही बात है।
ये ए है और ये बी है। ये जो रेड वाली लाइन है, कहना ही सही, ये अपने आप में हेक्सागन है। तो अगर ये साइड बी है तो ये जो लेंथ होगी ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके। ये जो रेड वाली फिगर है, अगर ये साइड बी है तो ये भी साइड बी होनी चाहिए और ये भी साइड बी होनी चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। ये जो बी है, यानी जो रेड कलर में बी लिखा है, वो पेंसिल वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। समझ में आ रही बात? जो रेड कलर में बी है, जो कि साइड है अंदर वाले का, वो पेंसिल वाले ट्रायंगल का, आउटर ट्रायंगल का क्या एल्टीट्यूड। तो इसका मतलब जो बी की वैल्यू है वो √3/2a है। हो गया आंसर। a is to √3/2a, 2 is to √3, आंसर आ गया। ए कट गया। हाँ वो मैं समझ गया, तुम बड़ी मेहनती बच्चे हो तुम सब, देख रहा हूँ। ये आ गया, क्या करना था? कुछ नहीं करना। हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है, मेकिंग सेंस। अब दोनों हेक्सागन है तो दोनों सिमिलर होंगे। तो किसी भी सिमिलर फिगर का जो एरिया होता है वो स्क्वायर ऑफ लीनियर मेजर होता है। तो इस लीनियर मेजर कोई भी साइड का स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा 4, ये 3, ये एरिया आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन सॉल्व। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिखवा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ डिटेल में। फिर भी नहीं ध्यान है, पता चल, तभी मैंने कहा अगर तूने एरिया निकाल दिया और तू मेरे को कह रही है कि साइड का पेरीमीटर भी निकालूंगी तो फिर पिटाई वाले काम है। इसलिए कह रहा था, क्यों अंडर रूट निकालना था तेरे को, बस। या तो तूने साइड निकाला होता तो स्क्वायर करना था, तूने ऑलरेडी निकाल दिया तो अंडर रूट करके साइड निकालने का रेशियो में तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि फिगर सिमिलर है। ये इसका एप्लीकेशन है। देखो क्या होता है, पहले समझा देता हूँ फिर लिखवा। अगर हमारे पास कोई भी सिमिलर फिगर है, सिमिलर ट्रायंगल हम कर चुके हैं, मान लो ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है और ये मान लेते हैं बड़ा ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर है। मान लेते हैं इसकी साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो मान लेते हैं 6 है, 8 है, 10 होगा। अगर हमें कोई भी साइड नहीं दी, सिर्फ ये साइड दी है, हमें सब कुछ नहीं पता, तो दोनों, और हमें ये पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो साइड का रेशियो क्या है? 3:6, यानी पेरीमीटर का रेशियो यही होएगा जो साइड का रेशियो है। और अगर इसका एरिया निकालना है तो ये इसका एरिया का रेशियो होएगा, काम खत्म। और अगर ये वॉल्यूम होता तो क्यूब हो जाता और भी काम खत्म हो जाता। अभी रुक जा, मान, हाँ मान लेते हैं ये इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड है। हमें इसकी साइड नहीं पता, सिर्फ एल्टीट्यूड से तो एरिया निकलता नहीं है, लेकिन हमें पता है इसका एल्टीट्यूड 3 है और इसका एल्टीट्यूड 4 है। तो A1:A2 का जो रेशियो ये पेरीमीटर बनेगा वो 3:4 ही बनेगा, लेकिन एरिया जो बनेगा वो 3² बनेगा, यानी 9:16 बनेगा। एरिया कोई भी सिमिलर फिगर है, दो फिगर सिमिलर है, कोई भी लीनियर मेजर लेना है, लीनियर मेजर यानी लंबाई ले लो, चौड़ाई ले लो, ऊंचाई ले लो, कुछ भी ले लो, पेरीमीटर का रेशियो उसी रेशियो में होगा, एरिया होगा उसका स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अपन रेक्टेंगल लेते हैं, मेरे पास एक रेक्टेंगल ये है, लेट मी से मेरे पास एक रेक्टेंगल ये है। हमें ये पता है कि ये दोनों सिमिलर फिगर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता दोनों के हमें कुछ नहीं पता, हमें इसका डायगोनल पता है और हमें इसका डायगोनल पता है। ये मैंने कहा ये डायगोनल 4 है और ये मान लो मैंने 7 का। अगर एरिया का रेशियो निकालना है ना तो ये बनेगा 4²:7², ये रेशियो ऑफ एरिया आ जाएगा दोनों रेक्टेंगल्स का। डिस्पाइट वी नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, वी विल नो। चाहे डायगोनल पता हो, चाहे इसकी ब्रेथ पता हो, चाहे इसकी लेंथ पता हो, जो भी लीनियर मेजर, लीनियर यानी सिंगल मेजर यानी सिंगल चीज का नाप अगर पता है तो हम उसका पेरीमीटर का रेशियो उसी में आएगा और एरिया का रेशियो उसके स्क्वायर में आएगा, और अगर वो 3D फिगर है तो वॉल्यूम का रेशियो उसकी क्यूब में आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दिस, in two similar figures, the ratio of their perimeter is always the ratio of their linear measure. Similarly, in two similar figures, the ratio of their areas is square of linear measure.
In two similar figures, the ratio of their volume is cube of linear measure. ठीक है, ये इसकी लर्निंग्स हैं। क्या हाँ जी, हो गया, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो जो हेक्सागन का सर्कल होगा ना, हाँ, वो हेक्सागन का जो सर्कल है उसकी रेडियस b है, और b जो है वो साइड का एल्टीट्यूड है, तो उसका रेडियस √3/2a हो जाएगा। समझा? जो सर्कल है वो रेडियस है वो b है, और b है वो उसका एल्टीट्यूड है, तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये 2 डायमेंशनल फिगर्स में हमारा पेरीमीटर्स और एरियाज खत्म होता है। इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम्स, यानी 3 डायमेंशनल फिगर की वॉल्यूम्स। एरिया, हाँ, उसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो तो हम करेंगे ही उसमें। जब 3D करेंगे तो दोनों ही तीनों चीजें करेंगे। हाँ, एलिप्स और कर लेते हैं। एलिप्स क्या होता है? जो सर्कल होता है ना, वो एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है। बेसिकली एलिप्स में दो सेंटर पॉइंट होते हैं, इसको 2 फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 डाया हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। जो इसकी लेंथ होती है उसको हम 2a बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है उसको हम 2b बोलते हैं। ठीक है, जब ये सर्कल होता है तो a और b बराबर होता है। सर्कल में पेरीमीटर कितना होता है? 2πr होता है ना। बेसिकली ये क्या होता है? पाई r+r होता है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। इसमें अगर एलिप्स की बात करें तो एक लेंथ a और एक लेंथ b है, दोनों अलग अलग रेडियस है, तो ये इसका क्या बन गया? मेरा पेरीमीटर ऑफ एलिप्स। ऐसे याद कर सकते हैं, लॉजिकल है। ऐसे ही सर्कल का जब हम एरिया लेते हैं तो πr² होता है। वो बेसिकली क्या होता है? πr×r होता है, क्योंकि दोनों a और b सेम हो जाते हैं, तो उसमें एक बार a आ जाएगा, एक बार b आ जाएगा, ये मेरा एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा।
दिस 2a इज कंप्लीट लेंथ, बाहर लिख देता हूं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एलिप्स। अब हम आते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स पे। बेसिकली जो हमारे पास फिगर्स हम पढ़ते हैं वो हम राइट फिगर्स पढ़ते हैं। राइट फिगर का मतलब होता है जो ग्राउंड से 90 डिग्री पे हो, उसको हम राइट फिगर बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमने इस पे राइज कर दिया, तो ये सिलेंडर ये इस पे 90 डिग्री बना रहा है, दिस इज राइट फिगर, राइट। इन अनदर वर्ड्स, लेट अस से मैंने कोई सिलेंडर बनाया, अरे वाह तो बढ़िया फिगर बन गई, मैं तो सोची नहीं ऐसे बनती होगी। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है वैसे ना, तो अब ये जो इसको ये साइड है, जो इसकी साइड है, ठीक है, इसकी जो साइड है ग्राउंड से 90 डिग्री पे, समझ में आ रहा है? इसको राइट फिगर बोलते हैं। हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो हम राइट फिगर्स पे ही करते हैं। जैसे कि मान लो तो ऑब्लिक फिगर्स क्या होते हैं, मान लेते हैं ये सी है, मान लेते हैं कि ये है, और एक ये मेरी फिगर ऑब्लिक कहलाएगी। इसका हम नहीं निकाल पाएंगे एरिया वगैरह, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब ये इसमें साइड है, इसकी जो ये इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है, ये हमारे ग्राउंड से परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, एंगल बनाए। तो इसका जो हाइट मानी जाएगी, जो इसकी हाइट होगी वो ये मानेगी, इस सेंटर से ये हाइट है इसकी, इस टाइप से हाइट आएगी। So there is something known as slant height and there is something known as height. इसके अंदर जो हाइट बनेगी और जो इसकी साइड की हाइट बनेगी वो दोनों सेम बनेगी। ये राइट फिगर है, ये ऑब्लिक फिगर्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, राइट फिगर्स, दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट। मैं अब आपको एक बार थोड़ा जनरलाइज पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद हम स्पेसिफिक भी देख लेंगे, लेकिन एक बार जनरल चीजें समझ में आ जाएंगी तो हम किसी भी टाइप के फिगर्स को समझना हमारे लिए आसान होगा। अब हम जो भी फिगर्स पढ़ते हैं उसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो हम उसको प्रिज्म बोलते हैं और या हम उसको पिरामिड बोलते हैं। सो व्हाट इज अ प्रिज्म? एनी फिगर which is having a base, identical base and an identical top and is connected by straight lines is known as a prism. For example, this cuboid, जैसे cuboid हम पढ़ते हैं, ये कमरा जो है, it is a prism because it is having a rectangular base and a rectangular top and it is connected by vertical lines, so it is becoming a prism. Square prism, triangular prism, hexagonal prism, any kind of prism can be drawn. So any figure, for example, once again, as I told you, my drawing may not be that great, but I try to explain to you. So let us say we have this figure. Now, this is actually a prism. हालांकि हमें प्रिज्म तो एक ही चीज समझ में आती है, वो जो लैब में होती थी, रंग देखते थे हम उसमें, हाँ वो रंग बस धूप में करके रंग देखते थे, ये प्रिज्म है। इट इज ए ट्राइंगुलर प्रिज्म, नीचे ट्राइंगल है, ऊपर ट्राइंगल है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड, दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है, तो 3D में स्क्वायर ऐसा तो नहीं नजर आएगा ना,
ये नीचे कुछ तो भी मान लो रोम्बस, ऊपर भी रोम्बस, और हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अगर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर तो भी हमारा प्रिज्म है। मान लेते हैं मैंने ऐसे एक फिगर बनाई, ये क्यों नहीं बनी? अब अगर हम इसको जोड़ दें, ये क्या बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा ठीक है, ये हमारा बन गया हेक्सागोनल प्रिज्म। इसका मतलब ये है नीचे बेस सेम हो टॉप सेम हो तो क्या बनेगा मेरा, हमेशा प्रिज्म बनेगा एंड इट इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो टॉप और बॉटम को अगर हम छोड़ दें तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। किसी भी फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालना है तो हम बेस का पेरीमीटर निकालें इनटू हाइट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्यूबॉइड निकालते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड कोई एक कुछ ऐसे बनाते हैं कुछ लोग, ये क्यूबॉइड है। बेस का पेरीमीटर मान लेते हैं एल है, ये बी है, ये एच है, तो बेस का पेरीमीटर बनेगा एल प्लस बी इंटू 2 इंटू हाइट बनेगा एच। तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। समझ में आ रहा है, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस। और अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए होता है तो जो टीएसए बनता है वो क्या बनता है, सीएसए प्लस ट्वाइस बेस एरिया। तो सीएसए बनेगा 2h इंटू एल प्लस बी प्लस 2 टाइम्स एल बी, यही बनेगा। तो ये मेरा बन जाएगा 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ऑफकोर्स मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा डिटेल में, इसमें 2-3 चीजें और है, बट फिलहाल मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये, किसी भी चीज का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला है। मान लो हमारे पास हेक्सागोनल प्रिज्म है और इसने बोला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो अब हेक्सागोनल प्रिज्म मान लो चाहिए हमें, तो बेस का पेरीमीटर बनेगा 6 से मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ये बनेगा 6ah प्लस 2 टाइम्स बेस का एरिया। तो बेस का एरिया अभी अभी हमने सीखा था na² बाय, अब चूंकि हमें इसका पता है हेक्सागन है तो ये 6 इंटू √3/4 a², ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई भी जनरल हेक्सागन है या जनरल पॉलीगन है तो बेस का पेरीमीटर तो बनेगा 6a इंटू n, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हैं, a इज द साइड,
और उसका जो एरिया बनेगा, हाँ a इंटू एन, सॉरी a इंटू एन, a इंटू एन इंटू पूरा, हाँ तो जनरल फॉर्मूला बनेगा ANH प्लस 2 टाइम्स NA स्क्वायर बाई 4 cot ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये किसी भी जनरल पॉलीगन का मतलब पॉलीगोनल प्रिज्म का, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? किसी भी प्रिज्म का TS से निकालने का ये फॉर्मूला है। ये हेक्सागन स्पेसिफिक केस हो गया, ये किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगोनल प्रिज्म का एरिया निकालने का तरीका है। समझ में आ रही बात? अब ये नीचे चाहे रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम आराम से निकाल सकते हैं। ये एक चीज क्लियर हो गई है। और कोई भी फिगर जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं, मान लो सिलेंडर, क्या ये प्रिज्म है? ये प्रिज्म है। बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू एच करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, काम चल जाएगा। ये भी मेरा एक प्रिज्म है। आ रही बात समझ में? तो किसी भी प्रिज्म का एरिया ऐसे निकल सकता है, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस। उसके बाद अगर हमें किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, बेस एरिया इनटू में हाइट। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मान लो हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो बेस का एरिया बनेगा 6 टाइम्स √3/4 a स्क्वायर इंटू एच, काम खत्म। ठीक है, जनरल प्रिज्म है कोई भी, बेस का एरिया आपको पता ही है क्या बनेगा, NA स्क्वायर बाई 4 cot ऑफ 180 बाई n इंटू में h। जैसे कि मान लो सिलेंडर है, प्रिज्म है, बेस का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, काम खत्म, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो जो भी फिगर सीधी सीधी ऐसे, उसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ट्रिग्नोमेट्री के कौन से? हाँ वो कॉट, एक दो तो बेसिक है। ये कॉट, टैन कॉट, हाँ इसका एक रेशियो होता है और इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पॉलीगोनल प्रिज्म, वॉल्यूम, अच्छा और क्या बच गया? हाँ, अब ये जो भी हमने फिगर्स पढ़ी हैं ये सारी है मेरी प्रिज्म, क्योंकि नीचे और ऊपर सेम है। फिर दूसरी चीज होती है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? जो नीचे से चलती है ऊपर जाके चोंच में कन्वर्ट हो जाए, नीचे से चले ऊपर जाके चोंच में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि ये जितनी भी फिगर्स हैं, अगर ये ऊपर सिंगल पॉइंट पे मीट कर जाएं, यानी कि ये जो लेंथ है ये यहां पहुंच जाए, ये यहां पहुंच जाए, तो ये जो फिगर बनेगी ये क्या बनेगी? मेरी
ट्रायंगुलर पिरामिड है ये मान लो इस पे मीट कर जाए, ये रोम्बस पिरामिड है ये, या स्क्वायर पिरामिड अगर ऐसा लग रहा है तो कुछ तो पकड़ लेना, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये सेंटर पे पहुंच जाए तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है। तो ये 6 के 6 ऐसे जाएंगे। ठीक है, अब जिसमें सीखने की बात है वो ये है कि जो वॉल्यूम होता है पिरामिड का, वो होता है 1/3 ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ, जैसे कि मान लेते हैं हमने सिलेंडर यहां देखा, अभी अभी ये कर रहे थे अपन, अगर मैं इसको सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर दूं तो ये क्या बनेगा, कोन। कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, पिरामिड। कोई भी ये पिरामिड होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। इसके बाद आता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो घुमावदार, मान लो हमने कोन लिया है तो जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला बनेगा, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं आर। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा वो बनता है πr_l। व्हाट इज एल, इज द स्लांट हाइट, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई जनरल फिगर आ गई तो हम उसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया मेरा है हाफ πr। बेसिकली इट इज हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये बनता है हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। तो अगर मान लो मेरा हेक्सागोनल पिरामिड है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हेक्सागोनल पिरामिड में बेस का पेरीमीटर इंटू ये जो रेड कलर में है ना ये स्लांट हाइट, ये एल निकालना पड़ेगा। और ये स्लांट हाइट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। सो जो एल की वैल्यू है, एल जो एल की वैल्यू निकलती है वो निकलती है √ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये वहां से निकलेगा, स्लांट हाइट की वैल्यू यहां से निकलेगी। हैं
साइड सेंटर में जाएंगे राइट, तो बेस जो होगा वो हाफ नहीं रहेगा। किस फिगर में? सर्कल में ले लें। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया लेना है तो बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस। लॉजिक क्लियर है? नीचे वाला एरिया जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लास में हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोलो। क्लास में हूँ कह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताओ। ठीक है, अब ये तो हमने सारी जनरल फिगर्स कर ली। अब कहो तो मैं आपको सारी स्पेसिफिक फिगर्स करा देता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक फिगर्स में हम क्यूब्स कर लेंगे, क्यूबॉइड्स कर लेंगे, और दो तीन चीजें और हैं वो भी। तो ये जो फॉर्मूले हम वैसे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर हम फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्यूबॉइड को लेके। सो बेसिकली क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर बेस विद सम प्रोजेक्शन, राइट। जैसे एक कमरा है हमारा, ये रेक्टेंगुलर बेस है और हम इसको ऊपर की तरफ उठा दें, छत तक ले जाएं, तो ये क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। इधर दीवार 2, इधर और इधर 3, छत और बेसमेंट 6। सो वी हैव 6 फेस। फिर इसमें एक होता है एज। एज किसको बोलते हैं? जहां पे दो फेस की मीटिंग होती है, जहां पे दो फेस की मुलाकात होती है, उसको हम एज बोलते हैं। तो कितनी एजेस हैं? तो 4 एज ऊपर है, 4 एज नीचे है, और 2 ऐसे, 2 इधर, तो कितनी हो गई? 12 एज होगी। ठीक है, फिर इसमें वर्टेक्स होता है। क्या होता है? जहां पे तीनों फेस की मुलाकात होती है, ये फेस और, तो कितने एज है? एज। तो कोई भी जो सिमेट्रिक फिगर होती है उसमें कंडीशन होती है फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। तो आपको ये याद रखना है, फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मान लो ये हमारे पास, हाँ E+2 है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपको इसका अगर इसमें एक होता है फेस डायगोनल्स। कितने फेस डायगोनल है? ये मान लेते हैं लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। उसमें से 3 डिफरेंट फेस डायगोनल्स होंगे। एक फेस डायगोनल होगा ये वाले फेस पे, इसकी लेंथ कितनी होगी? L² + H² का अंडर रूट। एक फेस डायगोनल तो ये हो गया। दूसरा फेस डायगोनल ये होगा, ये बनेगा B² + H² का अंडर रूट। और एक फेस डायगोनल जो ग्राउंड पे होगा वो ये वाला होगा। ठीक है ना, ये L है, ये B है, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ L² +। तो ये तीनों मेरे फेस डायगोनल्स हो गए, अलग अलग लेंथ है। समझ में आ रही बात? ये जो पेंसिल वाला डायगोनल है वो नीचे अगर मैं बनाऊं तो ये वाला बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्टिक दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम विद डायमेंशन L, B एंड H? और ये कैसे आया? इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और ये कैसे निकलता है?
कैसे, क्यों? लेट अस इमेजिन अ थ्रेड फ्रॉम दैट टॉप कॉर्नर टू दिस बॉटम कॉर्नर, हमें इसकी लेंथ चाहिए। हाउ कैन वी फाइंड आउट? लेट अस से दिस इज द बेस, ये जो पेन है ये बेस है, इसकी लेंथ कितनी है इस डायगोनल की? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये रूम रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और ये मेरी एच हो गई। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा। तो जो बेस का स्क्वायर है वो क्या है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर है, प्लस हाइट का स्क्वायर करना है और इसका अंडर रूट करना है। आ रही बात समझ में? तो ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्टिक दैट वी कैन पुट, इट इज नोन एज बॉडी डायगोनल एंड these थ्री आर नोन एज फेस डायगोनल्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, फेस डायगोनल्स एंड बॉडी डायगोनल्स। ये सारे बॉडी डायगोनल्स की लेंथ सेम होगी, ऊपर से नीचे, उस ऊपर से इस नीचे, कहीं से भी आप डायगोनल ऊपर नीचे करोगे तो सब हमेशा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, इट कैन आल्सो बी नोन एज एरिया ऑफ फोर वॉल्स। मान लो ये एल है, ये एच है, एल एच बनेगा, ऐसे दो बनेंगे, सामने वाली दीवार क्या है? बी एच, ऐसी दो दीवारें हैं बी एच, तो ये 2h इंटू एल प्लस बी, या फिर हमने जब फॉर्मूला बनाया था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही था बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। इसको कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो जो ये बेसिकली CSA है, इसमें जमीन का एरिया क्या बनेगा? LB, और छत का एरिया बनेगा 2LB। तो CSA में अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या 2HL प्लस 2HB प्लस 2LB बनेगा, तो 2 कॉमन निकाल के अपन LH प्लस BH प्लस LB के नाम से जानते हैं। ऐसे इसका वॉल्यूम निकालोगे तो बेस का एरिया बनेगा L इंटू बी इंटू हाइट करोगे तो ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच हो जाए, जिसकी को हम A मान लें, तो हम इसको क्यूब के नाम से जानते हैं, देन इट इज नोन एज अ क्यूब। तो मान लेते हैं एक स्क्वायर ऐसा है और एक स्क्वायर ऐसा है, तो ये A है। ठीक है, वंस अगेन कितने फेसिस हो गए? 6 फेसिस है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6A स्क्वायर बनेगा, लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 4A स्क्वायर बनेगा। यही बात है। अगर इसका फेस डायगोनल निकालना है तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2A बनेगा। बॉडी डायगोनल निकालना है तो √3A बनेगा, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो A क्यूब बन जाएगा। आ रही है बात समझ में यहां तक? ठीक है, cuboid, no problems. Then we come down to cylinder. ये मान लेते हैं हमारा रेडियस है R, ऑब्वियसली इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया बनेगा, कितने ढक्कन है यहाँ? अगर हम अपने आप को नहीं समझते तो ठीक, ये बन जाएगा। वॉल्यूम कितना बन जाएगा?
ठीक है। ओके, तो ये सिलेंडर का आपका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका ले लेते हैं कोन। इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं R। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा पाई आर एल, ये L है, L की वैल्यू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया बनेगा पाई आर एल प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, कोन। ठीक, फिर हम आते हैं स्फीयर। स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल सरफेस लाइक दिस। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस, कर्व तो होता ही नहीं है क्योंकि कंप्लीट फिगर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ही होगा 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब अगर हमें तो हमें हेमिस्फीयर बनाना है, मान लेते हैं ये सर्कल है। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया एडिशनल आ जाएगा क्योंकि नीचे ही अपने आप में ये सर्कल है, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम बन जाएगा, इसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से आएगा टोरस। क्या हुआ, क्या क्या कर रहे हैं, क्या भारी हो रहा है क्या, चकाचौंध भारी हो रही है। तू तो चश्मा लगा के कैसे भारी हो रही है? नहीं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं टोरस पे। ये कम कैसे होते जा रहे हैं, वो क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है कौन, वो कैसे जाते हैं, मैंने सोचा। ठीक है, अभी टोरस करते हैं पहले। टोरस टोरस होता है जैसे साइकिल की ट्यूब होती है, इट इज अ टोरस। ऐसे गोल सा होता है और ऐसे घुमावदार होता है, उसको हम टोरस। तो टोरस का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। मान लेते हैं अपन साइकिल की ट्यूब को काटें, तो जब साइकिल की ट्यूब को काटेंगे तो उसको सीधा करने की जब हम कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से सीधा नहीं होएगा वो। क्यों, क्योंकि अंदर वाली जो ट्यूब है वो बाहर वाली ट्यूब से छोटी है, तो अगर हम काटेंगे कुछ तो ऐसा सा दिखेगा। समझ में आ रहा है? अब इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान सीधा ही काट रहे हैं हम, ऐसे ही काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे, तिरछा नहीं काट रहे। अब साइकिल की वो तो जो ट्यूब बाहर वाला पोर्शन है, तो ट्यूबलेस में भी तो जो बाहर वाला पोर्शन है सर, बाहर वाला वो बड़ा नहीं होगा अंदर वाले पोर्शन से।
नहीं इमेजिन हो रहा क्या? ओके नाउ अभी मान लो वो टायर है, इतना मोटा टायर है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अरे अभी बढ़ाया कहाँ है, समझ गया। ओके जो टायर है, टायर की थिकनेस, उस थिकनेस को हम 2r मान लेते हैं। यानी अगर उसको कट करेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये 2r मान लेते हैं, ठीक है। और चूंकि ये टायर कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं ऐसा सा टायर होता है, ये टूर, ये उसी का टायर है ना, पंचर है थोड़ा सा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जब टायर चलेगा तो हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम दिल्ली जाओ तो जो ये टायर है ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है तो ज्यादा आगे पहुंच जाएगा, ये टायर पीछे, ऐसा तो नहीं। तो दिस इज लेट अस से एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से ए। तो जो टायर है ऐसा, उसका सेंटर से जो दूरी है उसको ए मान लेते हैं। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये कुछ, ये वाली जो डॉटेड लाइन है वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो इस गोलाई की लंबाई को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई ए। यानी हम, ये सिलेंडर है, ये इन सेंस ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, बाहर वाली लेंथ ज्यादा अंदर वाली कम है, तो हमने एवरेज लेंथ ले ली 2 पाई है, और रेडियस कितना है r। तो अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो ये तो बनेगा 2 पाई आर बेस का एरिया, यानी ये क्रॉस सेक्शन, ये टेढ़ा जरूर है लेकिन हम एवरेज कर रहे हैं। और हाइट कितनी हो गई? 2 पाई ए। तो इसका जो सरफेस एरिया बनेगा, ये इसमें तो टोटली बनेगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर ए। ये बनेगा आपका टोरस का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि वो बंद है ना, ये तो समझाने के लिए काट दिया मैंने। सी एस से नहीं होगा, इसमें टी एस से होगा, क्योंकि बंद है ना ट्यूब। जैसे स्फीयर पूरा है तो उसमें सी एस से कहाँ होता है। ये काटा तो मैंने समझाने के लिए काटा है कि इसको काट के सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकालेंगे। लेकिन अब सिलेंडर बनाएंगे तो बाहर वाली लेंथ अंदर वाली से बड़ी होगी, तो एवरेज लेंथ ले रहे हैं हम, बीच वाली लेंथ ले रहे हैं बस। इसी तरीके से अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो बेस का एरिया इंटू हाइट था, तो बेस का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट बनेगा 2 पाई ए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ए। ये बन जाएगा मेरा वॉल्यूम, ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ टोरस। चलो फ्रस्टम कर लेते हैं। फ्रस्ट्रेट हम हो ही चुके हैं, थोड़ा सा फ्रस्टम और बचा है। फ्रस्ट्रेट हो गया तो फ्रस्टम, मतलब फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन और कट मार दो उस पे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही बात? ओके, अब हम करते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड बकेट। तो इन्वर्टेड बकेट का मतलब, मान लेते हैं हमारे पास कोई कोन है और हम उसको काट दें। समझ में आ रहा है? ये अगर ये ऊपर वाला पोर्शन छुपा दूं, ये पोर्शन सिर्फ फ्रस्टम कहलाता है। कोई कुछ कह रहा है? हाँ भाई, कुछ कह रहा है वो कोई? नहीं, ठीक है, ये फ्रस्टम है। अब फ्रस्टम में ये मान लो इसका सेंटर है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ये बड़ा रेडियस है।
यहां से हम सेंटर से ये डिस्टेंस ले लेते हैं, दिस इज स्मॉल आर। क्या चक्कर है, क्यों नहीं ले रहा? ये स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं h। अब इसमें दो चीजें होती हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। मैं इसमें से एक चीज डिराइव करके दे दूंगा आपको, ताकि दूसरे वाला वैसे कर सको। वॉल्यूम करना है या सरफेस? टीएस से कर देता हूं, चलो। ये मान लेते हैं साइड एल है, यहां से यहां एल है, ठीक है। और यहां से यहां पे इस लेंथ को हम मान लो कैपिटल एल मान लेते हैं। तो अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पूरे सिलेंडर में से ऊपर वाले पूरे कोन में से ऊपर वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल दूं तो नीचे वाला आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब बेसिकली मुझे करना है पाई बड़े वाला मतलब कैपिटल आर एल, एल यानी कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल में से हमें पाई स्मॉल आर कैपिटल एल माइनस करना है, तो ये मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? द ओनली थिंग इज वी डोंट नो द रिलेशन, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एल। Now, if you look at this particular triangle, now if you look at this particular triangle and this particular bigger triangle, they are similar because this is 90 degree and this is 90 degree. This angle and this angle are same. So this smaller triangle is similar to the bigger triangle. Therefore, the length of the smaller triangle L upon capital L plus L can be taken as small r upon capital R. Similarity of triangle. Now I am only searching for L. L I am trying to convert here. So capital L capital R is equal to small r L plus small r this L. I can take this on left hand side. I can take L common, capital R minus small r is equal to LR. So capital L is equal to RL divided by capital R minus small r. I am going to replace this L here. That is the agenda. That's all. So I will have pi capital R. Capital L can be taken as this minus R plus L minus of pi R. L can be taken as RL divided by capital R minus small r. And we are going to now solve this. Pi capital R अंदर आ जाएगा this plus L capital R minus L small r whole divided by capital R minus small r minus pi r square L divided by capital R minus small r. From here I can cancel LR and LR and I can take what common? I can take L common and pi common. pi कहां से आ गया? अच्छा ये अलग ब्रैकेट है, रुको ये अलग है ना, बस. So I can now take pi here and I can take L here and I will have capital R into small r plus capital R square minus of R square, L तो बाहर आ ही चुका है, divided by capital R minus small r. यही बनेगा. ओके कुछ तो मिसिंग है. अच्छा ये तो आर स्क्वायर है ना, कट तो गया, यहाँ पे गलती कर दी ना, ये आर तो है ही नहीं, ये आर एल ये कहाँ से आ गया, ये तो खत्म ही है, ये बचा बस है ना, बस रुको. तो ये आर इसमें एल कॉमन हो गया तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचा माइनस आर स्क्वायर बचा, तो ये बनेगा मेरा पाई एल
r plus r into capital R minus r whole divided by capital R minus r. कैपिटल R माइनस R खत्म हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा पाई L इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r. ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है. ठीक है, जनरली फॉर्मूला पाई आर एल होता है, इसमें दोनों आर लेना है. अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया लेना है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो मुझे चाहिए ही होगा, प्लस बेस का पेरीमीटर बनेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और छोटा वाला बनेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर. वंस अगेन यू मे वांट टू टेक कॉमन और यू कैन लीव समथिंग लाइक दिस. ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा. ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं 1/3 A1 plus A2 plus under root of A1 A2. H भी आएगा क्योंकि वॉल्यूम बने 1/3 H into A1 ये बनेगा. समझ में आ रहा है? What is A1? Pi capital R square. What is A2? Pi small r square. So this is the volume of frustum. बोलिए, यहां तक क्लियर है? अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं. बस दो. But other than that, apart from questions, we have completed this chapter. Apart from 2 or 3 questions which I want to do, but chalo koi nahi. We are done with mensurations. Then we are left with what? Coordinate geometry. Okay. Anything that you want to ask from this, by the way, online? No, sir. Okay, then I'm ending this meeting for you guys. ठीक है, बैठो. ठीक.